Good morning, student. This is the second part. Welcome you again. Contribution of Firoz Shah Tughlaq. In previous part, we studied about the contribution Firoz Shah's empire, Tughlaq, when he ascended the throne. Okay, Firoz Shah, contribution of Firoz Shah Tughlaq. New revenue policy. Okay, he introduced new revenue policy. He revised the revenue policy, encourage agriculture and brought prosperity to the people. ठीक है, उसने encourage किया, लोगों को उत्साहित किया in agriculture and brought the prosperity to the people. There was a rapid growth and trade and commerce. ठीक है, उसके शासन में बहुत ही तेज़ गति से व्यापार और कॉमर्स में काफ़ी तेज़ गति से ग्रोथ हुआ था. द रिडक्शन इन दिस प्राइस कमोडिटी डेली यूज मेड लाइफ कॉमन पीपल ईजी. ओके, एंड रिडक्शन इन प्राइजेस इन द ही रिडक्शन है, उसने बहुत सारी जो डेली जो फंडामेंटल लाइफ में बहुत सारे मौलिक जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत को रिड्यूस किया ताकि कॉमन पीपल के लाइफ ईजी हो पाए. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सर्टेन जुडिशियल रिफॉर्म, इम्प्रूव द पेनल सिस्टम. टॉर्चर वाज अबोलिश. ओके, torture was abolished. Firoz Shah set up the employment bureau for the employment only many hospitals for providing free treatment to the people. Okay, he introduced bureau of the unemployed people and many hospital for providing free treatment to the people. Okay, it was very good project made by him. He had also improved the currency system by introducing new coin of mixed metal. Next, welfare of पुअर. देखिए, इसने बहुत ही अच्छे काम किए, तभी वो 37 ईयर तक रूल कर पाया. उसने पीपल के लिए सोचा, अपने कंट्री के लिए सोचा. इससे पहले देखा कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, इसलिए वो ज़्यादा लंबे पीरियड तक शासन नहीं कर पाए. इसने देखिए यहाँ पे अच्छे काम किए. नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ द पुअर. स्पेशल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल. ओके, स्पेशल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश बाय हिम फॉर द हेल्प to the poor and needy people. It was also help poor Muslim in arranging the marriage of their daughters. Okay, it was also help poor Muslims in arranging the marriage of their daughter by providing them with the state help. Many sarais were established and trees were planted on both side of the road. देखिए, बहुत सारी सराय बनाई गई, ट्रीज लगाए गए रोड के साइड में. तो इस तरह से उसके द्वारा कुछ काम अच्छे किए गए थे. Development work. Firoz Shah Tughlaq is credited with the building numerous towns. Okay, he was credited with the building of numerous towns. Among these, some prominent towns were Hisar, Jaunpur, Firozabad. ठीक है, this 3 towns, Hisar, Jaunpur, Firozabad, etc. He constructed irrigation canal and dams. Also, he constructed irrigation and dam for agriculture sector. He also set up one of 2 Ashokan pillar. Okay, he set up one of the 2 Ashokan pillar at a Firozabad which he had removed from their original location. ठीक है, उसने जो ओरिजिनल लोकेशन से हटाकर उसने 2 सेटअप किए थे अशोक पिलर. फिरोज शाह वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड ही वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ अ लर्निंग. ठीक, वो सीखने का भी काफ़ी बड़ा वक्त कहा जाता है, काफ़ी उसको शौक था पढ़ने, ठीक, सीखने का. ही वेलकम एंड रिवार्ड स्कॉलर. ही वेलकम, उसने स्वागत किया, रिवार्ड किया ऐसे स्कॉलर्स का. एंड इस्टेब्लिशिंग मैनी स्कूल्स, कॉलेज एंड मदरसा. ठीक है, स्कूल, कॉलेज और मदरसा की स्थापना की थी. ही गॉट मैनी हिंदी बुक ट्रांसलेट इनटू पेर्शियन. उसने बहुत सारी हिंदी बुक को पेर्शियन में भी ट्रांसलेट किया. However, he followed a very orthodox religious policy and rule according to Islamic law. He consulted the ulemas in all matter. Okay, वो हर एक चीज़ में वो जो उलेमा होते थे उनसे कंसल्ट किया करता था. For the first time he imposed जजिया टैक्स. Okay, first time he imposed जजिया टैक्स on non-Muslim people. ठीक है, नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो जजिया टैक्स था. He demolished Hindu temple and built mosque in their places. He demolished. देखिए, बहुत सारे आज भी हम देखते हैं, बहुत सारे जो मस्जिदें वहाँ हिंदू प्लेस जो हिंदू टेम्पल्स रहे थे तो उन सबको तोड़कर उसने मस्जिदें बनाना शुरू किया. ही डिस्ट्रॉय द जगन्नाथपुरी टेम्पल. ठीक है, ही डिस्ट्रॉय द जगन्नाथपुरी टेम्पल इन उड़ीसा, नाउ उड़ीसा, एंड किल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिस. और बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया था. ठीक है, देखिए ये ज़रूर उसके गलत काम आ गए यहाँ पे. तो इसके कारण यदि कोई देखिए कोई गलत काम करता है तो उसका बिल्कुल डिक्लाइन, विनाश ज़रूर होता है. तो यहाँ लास्ट पॉलिसी में देखिए रिलीजियस पॉलिसी उसकी गलत रही है, तो जिसके कारण उसका अभी यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा. यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ तुगलक वंश. देखिए, all the Tughlaq ruler who succeed Firoz Shah were incompetent and
मेयर प्यूपेट इन द हैंड ऑफ देयर करप्ट नोबल्स। देखिए ऑल द तुगलक रूलर्स हु सक्सीड फिरोज शाह, ठीक है, जो फिरोज शाह था या सक्सेस हुआ था, वर इनकम्पिटेंट, वो अयोग्य था, इतना चालाक नहीं था, एंड मेयर प्यूपेट इन द हैंड ऑफ देयर करप्ट नोबल, जो भी करप्ट नोबल थे, दुष्ट जो दरबारी रहे हैं, तो उसके हाथों में वो प्यूपेट था, एक कठपुतली था। द एम्पायर श्रैंक इन साइज एंड देयर वाज अ पॉलिटिकल चोज। द एम्पायर वाज श्रैंक इन साइज, अब वो क्या साइज में श्रैंक हो रहा था, सिकुड़ रहा था, एंड देयर वाज अ पॉलिटिकल चोज, अब वहाँ पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र हो गया था, राजनीतिक ग्रुप बन गए थे। इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ द लास्ट किंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी दैट मंगोल किंग तैमूर लैन इन्वेड इन इंडिया। अब उसी समय मंगोल एक किंग था, ठीक है, मंगोल का किंग तैमूर लैन, ठीक लग रहा था, इन्वेड इन 1398 में उसने आक्रमण किया भारत पर, ठीक। हिज इंटेंशन वाज लूट एंड प्लंडर। देखिए किस पर्पज से उसने काम किया था, सिर्फ लूट एंड प्लंडर, वो ओनली ही वांटेड टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। द सुल्तान एंड हिज वजीर फ्लीट, अब देखिए यहाँ से सुल्तान और वजीर जो है फ्लीट हो गए थे, भाग गए थे। ही प्लंडर द सिटी फॉर मैनी डेज एंड मैनी पीपल वर मैसाक्र, उसने बहुत दिनों तक शहर को लूटा और बहुत सारे पीपल को हत्या कर दिया था, बड़ी संख्या में लोगों को मारना कहलाता मैसाक्र, ठीक है। मैसाक्र में किलिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यू माइट हर्ड अबाउट द जलियावाला बाग मैसाक्र, मीन्स बड़ी संख्या में लोगों को मारना ही मैसाक्र कहलाता है, हत्याकांड। एंड 1000 वर टेकन अ स्लेव, एंड 1000 पीपल वर टेकन अ स्लेव। ग्रेट बिल्डिंग एंड वर्क ऑफ आर्ट वर डेस्ट्रॉय, ग्रेट बिल्डिंग्स मेड बाय हिंदू पीपल्स, हिंदू किंग्स वर destroy, and he destroyed the prosperity of India as well as he destroyed the prosperity of India. The invention of Temur gave a death blow of the tottering तुगलक डायनेस्टी, और उनका जो इन्वेंशन भारत में, ठीक, आक्रमण है वो ठीक है, तुगलक डायनेस्टी को धकेल दिया है, ठीक है, डिक्लाइन की ओर, विनाश की ओर धकेल दिया है। नेक्स्ट आता है लेटर सुल्तान। आफ्टर तुगलक डायनेस्टी लेटर सुल्तान सैयद डायनेस्टी व्हेन तैमूर वेंट बैक। देखिए वो सिर्फ लूट और प्लंडर के माध्यम से उद्देश्य से ही भारत आया था। व्हेन ही तैमूर वेंट बैक द अपॉइंटेड खिज्र खान, ओके, जस्ट लाइक व्हेन मोहम्मद गौरी वेंट बैक टू हिज own country, so he appointed Qutbuddin Aibak, he was as viceroy in his army, appointed as the governor general in India, viceroy in India, okay, same as when Temur went back to his country, he appointed Khizr Khan as the viceroy of his territory, ठीक है, वायसरॉय, जैसे वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसरॉय अपॉइंट किया था, इसी प्रकार यहाँ पे भी तैमूर लैन ने वायसरॉय अपॉइंट किया यहाँ पे इन इंडिया। एंड ही फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, एंड ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी, सेम कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी, ठीक। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल ही सब्जेक्ट, ठीक है, वो एक अच्छा प्रशासक था, उसका सभी ने सम्मान किया। दिस डायनेस्टी हैड 4 रूलर्स, ओके, इस डायनेस्टी के 4 रूलर्स रहे हैं। देन लोधी डायनेस्टी। Now, Bahlol Lodi was the founder. Okay, Lodi. Bahlol Lodi was the founder of Lodi dynasty. He was succeeded by Sikandar Lodi. He was succeeded by Sikandar Lodi and finally Ibrahim Lodi. And Ibrahim Lodi. Only 3 rulers were there. It was during his reign that Mughal ruler Babur attacked. During this time, Mughal ruler Babur attacked on Delhi, and the army of Ibrahim Lodi and Babur fought the first battle of Panipat. The Lodi dynasty come to end and the Delhi Sultanate gave way to the Mughal Empire, और इसके बाद दिल्ली में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हो जाता है, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ओके, रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।